میں معافی مانگتا ہوں اپنے فوج کے جوانوں سے، میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کی ماؤں سے، میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آ کے کہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو۔ ہم زندہ ہیں الحمدللہ، ہم ابھی مرے نہیں ہیں، یہ قوم زندہ ہے، کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی۔ پیغام امن کمیٹی کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کے متنازع بیان پر سخت رد عمل۔ شہداء کی توہین کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی۔ جوان سرحدوں پر تنخواہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ماؤں سے کہہ کر جاتے ہیں کہ دعا کرنا شہادت ملے۔ مولانا طاہر اشرفی کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ حکومت سندھ کی جانب سے بین المذاہب مکالمے کا فروغ قابل تحسین قرار۔ علامہ راغب نعیمی نے کہا مسالک مذاہب مل بیٹھیں اور مکالمہ کریں تو بہتر نتائج ہوں گے۔ مفتی عبدالرحیم بولے ریاست اور حکومت کے درمیان ایک خلا ہے جسے پر کرنا ہوگا۔ سندھ حکومت کی قومی پیغامی امن کمیٹی کو تعاون کی یقین دہانی، سب امن کی کوشش کریں گے تو اللہ مدد ضرور فرمائیں گے۔ معرکہ حق کی کامیابی کے بعد دنیا میں پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی علماء کرام کے ہمراہ گفتگو۔ سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے کہا شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہم شہداء کی قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ تمام شہداء جو کہ شہداء ہیں یا غازی ہیں، وہ ہم سب ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہم سب کے لیے قابل فخر ہیں، اور ہم سب جو ہے ان کی قربانیوں کو بھی سراہتے ہیں، ان کی شہادتوں کو بھی سراہتے ہیں، اور ہم سب نے مل کر اپنے انداز گفتگو میں شائستگی اختیار کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کو اپنے متنازع بیان پر پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ شہداء کی بے حرمتی کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا دو ٹوک موقف، کہا مولانا اب جو باتیں کر رہے ہیں وہ سیاسی اخلاقی اصولی طور پر درست نہیں۔ مسلح افواج پاکستان کی سالمیت کے داعی ہیں، دہشت گردوں سے نہ تو مساجد اور نہ ہی دیگر قومی تنصیبات محفوظ ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے پر پوری قوم کا اتفاق ہے۔ شہیدوں کو جو ہے وہ یہ لقب دیا کہ وہ کرائے تنخواہ اسی لیے لیتے ہیں کہ وہ اگر جو ہے وہ شہید نہیں ہوتے، وہ اسی لیے پیٹی باندھتے ہیں کہ وہ اس پہ تنخواہ لیتے ہیں، اور قوم کے لیے جو قربانی دیتے ہیں اس کو وہ آپ شہید ڈکلیئر نہیں کر سکتے، جو بڑی افسوسناک بات ہے۔ انہی شہیدوں نے آپ کے مساجد کی آج تک حفاظت کی، انہی شہیدوں نے آج تک آپ کے جو ہے وہ امام بارگاہوں کی حفاظت کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے شہداء کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو افسوسناک قرار دے دیا۔ کہا پاکستان کا ہم سیکیورٹی فورسز کے شہداء کی مرہون منت ہے، شہداء ہمارا فخر ہیں۔ مولانا کے بیان سے ملک دشمن قوتیں خوش ہوں گی۔ جماعت کے سربراہ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ مولانا کو اس بیان پر پوری قوم اور شہداء کے ورثہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ چاہیں گے کہ ایک انٹیگریٹی ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ٹائم دیا جائے، اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اس پورا ایک مہینے کا جو تمام ایشوز ہے شروع سے لے کے آج تک اس کو دیکھیں، اس میں جو سزا اور جزا کا کمپوننٹ ہے اس میں وہ بھی ہو، اس میں ریکنسیلیشن کا کمپوننٹ ہو، اس میں فیکٹ فائنڈنگ ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر میں احتجاج کے معاملے پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ مظفر آباد میں اجلاس سے خطاب میں کہا کمیشن سزا و جزا کے تعین کے ساتھ حقائق کو سامنے لائے۔ مظاہرین کو احتجاج ختم کر کے مذاکرات کی پیشکش بھی کر دی۔ کہا آپ نے 30 دن تک احتجاج کا ریکارڈ بنا لیا، احتجاج تاحیات کے لیے نہیں ہوتے، انتہا پسند رویوں سے انتشاری قوتیں فائدہ اٹھائیں گی۔ عدم انتشاری کمیٹی کے مسلح جتھوں کے عام شہریوں سیکیورٹی اہلکاروں کے نشانہ بنانے کے ناقابل تردید شواہد۔ انتشاری کمیٹی کے مسلح عناصر نے متعدد پولیس رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو شہید کیا۔ سی ایم ایس سمیت سرکاری اور نجی املاک اور گاڑیوں کو بھی نظر آتش کر چکے۔ دکانوں کی جبری بندش کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کو دھمکیوں اور تشدد کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔
अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के बमपूर फौजी अड्डे पर अमेरिकी हमले में 7 फौजी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। अमेरिकी अफवाह ने अल सुब फौजी अड्डे के रिहायशी हिस्से को 13 मिसाइल से निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक आमनाए हुर्मुज़ के करीब और ईरानी साहिली इलाकों में मिसाइल और ड्रोन तंसीबात समेत दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों ने 7 घंटे जारी रहने वाली कार्रवाई में ईरानी तंसीबात पर दुरुस्त निशाने लगाए हैं। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान के उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर जवाबी वार। पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट बेस पर हमला। कुवैत में अमेरिकी लॉजिस्टिक मरकज को तबाह करने का दावा। उर्दन के शहर अल-अर्ज़क में वाक़े मवाफ़िक अल-सल्ती एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी तंसीबात को ड्रोन हमलों में निशाना बनाया गया। मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। ट्रंप की नई धमकी। ईरान पर मजीद दबाव बढ़ाने का ऐलान। नई पाबंदियों की भी वार्निंग। 20% मुजव्वज़ा फीस की जगह खलीजी ममालिक के साथ तिजारती और सरमायाकारी के मुआहिदों का फैसला। ईरान की छोटी, पुरतशद्दुद और बदनीयती पर मबनी क़यादत अपने मुल्क को मुकम्मल तबाही की तरफ लेकर जा रही है। अमरीकी फौज की ताकत की बदौलत आमना हुर्मुज़ में तेल की तरसील पहले से कहीं ज्यादा रवानी से जारी है। ईरानी बंदरगाहों से आने या जाने वाले तमाम जहाज़ों पर मुकम्मल बहरी नाकाबंदी नाफिज होगी। ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं न कह दूं कि बस बहुत हो गया। गुज़िश्ता रोज ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दिया है। ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का रद्द अमल। कहा, ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। आमना हुर्मुज़ धमकियों या जंग के जरिए नहीं खुलेगी। आबी गुजरगाह के मुआमले पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरान का 2 टोक ऐलान। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रीमिनिया ने कहा कि अमेरिका को आलमी क़वानीन और ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। आमना हुर्मुज़ में किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत या मुआहिदों की खिलाफ वर्जी को कबूल नहीं किया जाएगा। जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास। ईरानी पार्लियामेंट ने आमना हुर्मुज़ की मैनेजमेंट को कानून को मंजूर कर लिया। अरकान पार्लियामेंट का अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त खत्म करके नया रास्ता अख्तियार करने और आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत का बदला लेने का मुतालबा। ऐवान में इंतकाम इंतकाम के नारे बुलंद। अमरीका और ईरान फौरी जंगबंदी की जानिब बढ़े। हमलों का सिलसिला फौरी रुकना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक के सरबराह वोल्कर टर्क का अमरीका और ईरान पर फौरी जंगबंदी के लिए जोर। कहा, जंगी सूरत हाल की वजह से खित्ते में इंसानी हुकूक दाव पर लग गए हैं। आमना हुर्मुज़ का बंद होना खतरे की अलामत है। इससे पूरे खित्ते में मुआशी, मुआशरती और इंसानी हुकूक के मामलात बिगड़ सकते हैं। सफारतकारी को बहाल किया जाए। अमरीका और ईरान को अब जंगबंदी की जानिब लौट जाना चाहिए। अमेरिका ईरान के साथ जंग करके मशरिक़ वस्ता को तशद्दुद की जानिब धकेल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब सुनली ने यह कहा कि अमरीकी रवैये की वजह से गजा का बहरान जारी है और अमरीका कशीदगी कम करने की कोशिशों में रुकावट डाल रहा है। मुज़ाकरात के दरमियान अमरीका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की, जिससे खित्ते की सूरत हाल पर खतर हो गई है। अमरीका यमन और बहरे अहमर में होने वाली सूरत हाल का भी जिम्मेदार होगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ईरान को सख्त निशाना बनाने की धमकी। कहा, हम पर हमला हुआ तो पूरी कुव्वत से ईरान पर हमला करेंगे। ये ना सोचा जाए कि हम पर हमला हुआ तो हम खामोश रहेंगे। वो दिन गए जब हम पर हमले होते थे और हम फैसला कुन जवाब नहीं देते थे।
बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 3 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। अब तक हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने आइन के दायरे में मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, मुल्क तोड़ने की सोच रखने वालों से बातचीत नहीं हो सकती। रियासत हर चीज से मुकद्दम है। गवर्नर से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। रियासत की सलामती पर समझौता नहीं हो सकता। तशद्दुद, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और दहशतगर्दी की हिमायत करने वाली आवाज़ें मुल्क में नफरत और इंतशार फैला रही हैं। पाकिस्तान को कमज़ोर करने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। मालियाती पॉलिसी के बायस पाकिस्तान माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और इक़्तिसादी इस्तेहकाम की नई मिसाल कायम। पाकिस्तान ने मुल्की तारीख में पहली बार 4722 अरब रुपए से ज़ायद कर्जा मुकर्ररा मुद्दत से कबल वापस करके नई तारीख रकम कर दी है। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान के कर्जा बराए GDP तनासुब 75% से कम होकर तकरीबन 68.5% रह गया है। डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश को फ्रेयर के इलाके में कत्ल कर दिया गया। 2 मुल्जिमान को 36 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। DIG साउथ कराची असद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि पुलिस ने तकनीकी महारत से मुल्जिमान को ट्रेस किया। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुल्जिमान ने वारदात की। डकैती के दौरान एक गोली डॉक्टर आकाश को लगी जो जानलेवा साबित हुई। पेशावर में नामालूम अफराद की फायरिंग से ख्वाजा सरा जाम बहक जबकि दूसरा जख्मी। वाक़या थाना चमकनी के हुदूद में सब्जी मंडी पुल के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक जाम बहक होने वाले ख्वाजा सरा की शनाख्त मिशाल उर्फ मिशी जबकि जख्मी की बसीर वली के नाम से हुई। वाक़े के बाद पुलिस ने जाए वकुआ को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुल्जिमान की तलाश जारी। IMF का पाकिस्तान में औसत महंगाई 8.4% रहने का तखमीना। पाकिस्तान में महंगाई गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में ज्यादा और आइंदा 4 माली साल के दौरान रवा माली साल से कम रहेगी। IMF की अपनी कंट्री रिपोर्ट पेश की गई और IMF के मुताबिक मजीद मुसलसल 5 साल पाकिस्तान में औसत महंगाई की सिंगल डिजिट रहेगी। हुकूमत की जानिब से ईंधन की कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन का फैसला मुतवक्किल। नए निज़ाम के तहत ओगरा रोजाना रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तय करेगा। पेट्रोलियम डिवीजन के एक आला अहदेदार के मुताबिक तब्दील शुदा कीमतें रोजाना रात 12 बजे से लागू हुआ करेंगी। दुकानों पर छापों और मुतादिद दुकानें सील किए जाने के खिलाफ कराची की होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार में ताजरों की हड़ताल। ताजरों के मुताबिक इंतजामिया की कार्रवाइयों के बायस कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई। मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। बढ़ती आबादी में को दरपेश बड़ा चैलेंज है। नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम अहम कदम है। बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर बरवक्त काबू पाना नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेमिनार से खिताब। कहा, मुल्क में आबादी बढ़ने की शरह बहुत ज़्यादा है। आबादी में इजाफे से मुल्की वसाइल पर दबाव बढ़ रहे हैं। आबादी की रोकथाम से मुतालिक इजलास के लिए और इक़दामात के लिए फ़ंड मुख्तस कर दिए गए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ थानों में और इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जौहर टाउन, वफाकी कॉलोनी और टाउनशिप में बरसात। गुजरात में भी बादल खुलकर बरसे। कामोंकी में भी रिमझिम। शेखुपुरा में मूसलाधार बारिश हुई। शाहकोट, ननकाना साहब और सराय आलमगीर में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। गजा में जंगबंदी के बावजूद इजरायली ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी।
24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में बच्चे और खातून समेत 9 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद में थाना I-93 के एरिया के प्लॉट 381 से खुदाई के दौरान मिसाइल बरामद हुआ। गाजा में जंगबंदी के बावजूद इजरायली ज़मीनी और फ़िज़ाई